নমস্কার। আমি ডক্টর সপ্তর্ষি ঘোষ, কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, হোপ অ্যান্ড হিল ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, জটিয়াখালী মোড়, ফুলবাড়ি। আজকে আমাদের পুরো টিম এখানে আছে। আজকে 4th ফেব্রুয়ারি, ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে। তো এই ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডের যে কনসেপ্টটা, এটা প্রথম 2000 সালে প্যারিসে শুরু হয়, যে ক্যান্সারের আগেনস্টে সবাই যাতে একত্রিতভাবে লড়তে পারি সেই উদ্দেশ্যে এবং ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসটাকে বাড়ানোর জন্য। এই 2026-এ যে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড বাই ইউনিক। প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল যে ক্যান্সার পেশেন্ট আছে তাদের ক্যান্সারগুলো ইউনিক, মানে ভিন্ন, এবং তাদের সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্যান্সারের যে রিকোয়ারমেন্ট, সেটা যে ট্রিটমেন্ট যেটা করা হয় সেইটাতে আমাদেরকে সবাইকে একত্রিতভাবে সেই ট্রিটমেন্টে সাহায্য করা এবং তাদেরকে যাতে ক্যান্সার থেকে মুক্ত করা যায় বা তাদেরকে যাতে ক্যান্সারের মতো মারণ ব্যাধির থেকে জয়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করা, সেই দিকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে একসঙ্গে হয়ে। তো এইটাই হচ্ছে হলো ইউনাইটেড বাই ইউনিকের কনসেপ্টের মানে। তো আজকে আমরা আমাদের প্ল্যানটা এরকম ভাবে ছিল যে সকালে আমাদের একটা শিলিগুড়িতে একটা বাইক র্যালি হয়েছে, যাতে আমরা মাস ক্যাম্পেইন মানে মাস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করেছি, এবং তারপরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প চলছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে ব্লাড ডোনেশনও আমাদের এখানে হয়েছে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। এবং তারপরে আমরা এখন জলপাইগুড়িতে কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব, ওখানটাতে একটা ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ওয়াক আছে। তারপরে আমাদের এই সমস্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে, এবং ওপিডি আজকে ফ্রি ওপিডি আমাদের ছিল, তো সেখানটাতে অনেক পেশেন্ট ছিলেন। তো সেই এই সমস্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডেটাকে উদযাপন করছি। মূল উদ্দেশ্য এটাই যে ক্যান্সার আজকে খুব কিউরেবল একটা জিনিস। যদি আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট হয় তাহলে ক্যান্সার ক্যান বি কিওর, ক্যান্সারের অ্যাগেনস্টে জয় করা সম্ভব। এবং এই সমস্ত পরিষেবা আমাদের এক ছাদের তলায় এখন হোপ অ্যান্ড হিল ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে আছে, এবং সেটা খুব ভালোভাবে এখন ফাংশন করছে। আজকে আমাদের অলমোস্ট পুরো টিম অফ ডক্টরস এখানটাতে অ্যাভেলেবল। তো তারা নিজেরা মানে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে সমস্ত আহ, সুবিধাগুলো এবং কিভাবে কি কাজ চলছে সেই জিনিস নিয়ে আলোকপাত করবে। তো সেটাই আমাদের আজকে মূল বক্তব্য, যে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডেতে সবাই আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। কে কে রয়েছে আপনাদের স্পেশালি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিন। আমার ডান দিকে আছেন ডক্টর বিশাল মুখার্জি, সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট। মাঝখানে আমাদের ডিরেক্টর ম্যাডাম ডক্টর কল্পনা রয় ঘোষ, ডক্টর অনুকূল দত্ত, রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, ডক্টর ব্রহ্মানন্দ ভানগার্গি, সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট, ডক্টর টি কান্নন স্যার, মেডিকেল অনকোলজিস্ট, ডক্টর রাজেশ মিশ্রা, উনি হচ্ছেন নিউক্লিয়ার মেডিসিনের ডাক্তার, যে পেট সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট গুলো সব করে থাকেন, ডক্টর শ্রেয়া কুলকার্নি দত্ত, উনিও রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, ডক্টর অ্যানা সাজু পল, উনিও রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, এবং ডক্টর রত্না কিশোর, ও রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট। সরি, এইটাকে এডিট করে দিতে হবে, করা যাবে। ঠিক আছে ম্যাডাম, আজকের এই প্রোগ্রামটা নিয়ে একটু বলুন, কি ইচ্ছা রয়েছে আপনাদের? এক তো প্রতিদিনই আমরা ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, প্রতিদিনই পেশেন্টদেরকে আমরা সজাগ করছি যে ক্যান্সারটা খুব তাড়াতাড়ি, মানে এমন একটা রোগ যেটা যত তাড়াতাড়ি এটা ডিটেকশন হবে তত তাড়াতাড়ি তার ট্রিটমেন্ট মানে করে তাকে নির্মূল করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে সেই বোধটা জাগরিত হোক যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে যাই, স্পেসিফিক ডাক্তারবাবুর কাছে যারা ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন। অনেক সময় তো ক্যান্সার ডিটেকশনের পরেও তারা এদিক ওদিক সেদিক নানা কিছুতে মানে চেষ্টা করেন এদিক ওদিক করে করার, কিন্তু ক্যান্সারের একটা সঠিক মানে চিকিৎসা করতে গেলে যেমন তার ক্যান্সার হসপিটালেই আসতে হবে এবং তাদের যে প্রোটোকল আছে সেই অনুযায়ী তাকে চিকিৎসা করতে হবে। এবার আমরা তো সোসাইটিতে একটা সার্ভিস দিচ্ছি, এখানে শুধু যে ডাক্তারবাবুদের সাহায্য পেলেই ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা শেষ হবে তা নয়, গভর্নমেন্টেরও একটা বিরাট সাহায্যের ব্যাপার আছে। সেটা আমরা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের পুরোপুরি এই ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন। আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ভীষণ সাহায্য পাই। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে আমাদের এখানে চিকিৎসা হয়, যেটা খুব কম জায়গাতে হয়, এবং পুরোপুরি আমরা চেষ্টা করি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধাটা পেশেন্টকে দিতে। তার সঙ্গে আমরা চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডের থেকেও সাহায্য পেয়ে থাকে পেশেন্টরা, সেটা দিয়েও আমরা পেশেন্টদের আমাদের অনেক উপকার হয়। হ্যাঁ, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিমগুলো আমাদের কাছে ঠিক মতন পৌঁছাচ্ছে না। একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিমের সঙ্গে এমপ্যানেলমেন্ট করতে গেলে বা ইসিএইচএস এর সঙ্গে এমপ্যানেল করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, কারণ দিল্লিতে তাদের অফিস তারা বিনা কারণে ছোট ছোট কারণে রিজেক্ট করে দিচ্ছে, যেগুলোতে আমাদের কোনো মুখপাত্র নেই যে দিল্লিতে গিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে বলে। তো আমাদের এনএবিএইচ, ফুললি এনএবিএইচ হসপিটাল, এটা আমাদের সিজিএইচএস ইসিএইচএস হওয়াটা খুব জরুরি, কারণ এখানে অনেক সিজিএইচএস এবং ইসিএইচএস এর কর্মচারী যারা বেনিফিশিয়ারি আছেন তারা
আমাদের কাছ থেকে সুবিধা পেতে পারেন বিনা পয়সায়, কিন্তু সেইটা আমরা করতে পারছি না তাদের এই মানে আমাদের এই ইম্প্যানেলমেন্টের অসুবিধাটার জন্য, যেটা আমাদের দিক থেকে আমরা কমপ্লিটলি রেডি, কিন্তু কোনো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গেরোয় ফেসে আছে যেটাতে আমাদের স্মুথলি এটা হচ্ছে না। আমি স্পেশালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে, যদি কেউ থেকে থাকেন এটা শোনেন, আমি তাদের অনুরোধ করব যে এই জায়গাগুলো একটু দেখতে, যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে যাতে আমাদের কাজগুলো খুব স্মুথলি হয়। ম্যাডাম, পেশেন্ট ও পেশেন্টের পরিবারের ক্ষেত্রে কি বলবেন, বলতে চাইবেন? পেশেন্টের পরিবারের ক্ষেত্রে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম যতই গভর্নমেন্ট সাহায্য করুক, মিনিমাম কিছু টাকা পয়সা লাগে। একটা এত বড় জিনিসের চিকিৎসা, এটা এক দুদিনের চিকিৎসা নয়, এটা একটা বড় যুদ্ধ, বেশ কিছু বছরের যুদ্ধ। তবেই আমরা মানে সেই রোগটাকে দূর করা সম্ভব। বাড়ির লোকেদেরও সেইভাবে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে সেই যুদ্ধটার জন্য। পেশেন্টকে সাহস যোগাতে হবে, তাদের নিজেদের মনে সাহস যোগাতে হবে, এবং এটা নির্মূল করা সম্ভব যদি তারা কোঅপারেট করে। পেশেন্টকে বাড়িতে গিয়ে যত্ন করা, তার খাবার দাবারের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখা, যেটুকু খরচ করতে হয় আমরা চেষ্টা সব রকম ভাবে করি, কিন্তু তবুও ততটুকু খরচা করতেই হবে। সেই জিনিসটুকু একটু মনে রাখতে হবে যে এই জায়গাটায় এসে তাদের ঠকার কোনো জায়গা নেই, তাদের এই জায়গাটা এসে ঠিক ঠিকভাবে তাদের চিকিৎসাটাই তাদের বলা হয়, এবং আমরা সব রকম ভাবে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। এবার তাদের এবার একটু তাদের বাড়ির লোকেদেরও একটু পেশেন্টের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে হবে। सर, बताइए आपका ट्रीटमेंट में। हाँ, हाँ, तो मैं डॉक्टर अनुकूल दत्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हियर। मैं इधर करीब करीब 1 साल से हूँ। सो इन जनरल मैं इधर जो पेशेंट देख रहा हूँ बहुत लाइक रिलेटेड टू प्रॉब्लम आई विल से द स्मोकिंग पार्ट, बीडी स्मोकिंग एंड टोबैको रिलेटेड। सो वी हैव लॉट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, साथ में लंग कैंसर भी यहाँ पे बहुत है। तो हम ये अवेयरनेस कैंप इसलिए कर रहे हैं कि जो स्मोकिंग अवॉइड कर सके। एंड महिला में बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर है। सो ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है जो जितना अर्ली हम ट्रीट करें उतना बेटर है। स्क्रीनिंग इज अ वेरी पार्ट इम्पॉर्टेंट। जो हम बोलते हैं कि कैंसर को कैसे अवॉइड किया जा सके, अर्ली डिटेक्शन हो सके, कैंसर स्क्रीनिंग स्पेशली कि हम महिलाओं को एक उम्र के बाद 40 साल के बाद स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कैंपेन के दौरान से हम ये बताना चाहते हैं कि जिनको कैंसर हुआ है वो तो डेफिनेटली विल बी इन हॉस्पिटल, दे हैव टू, देयर इज नो चॉइस, तो ट्रीटमेंट कराने आएंगे। लेकिन जिन लोगों को अभी कैंसर हुआ नहीं है, तो उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक एनुअल स्क्रीनिंग कराए, स्पेशली वुमेन आफ्टर 40, और जिनके रिलेटिव्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, क्लोजली रिलेटिव्स जो हम बोलते हैं कि इमीडिएट डॉटर और कजिन, इनको अगर ऐसी कुछ एक बार कैंसर से डिटेक्ट हुआ है तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी आगे आके हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। दिस इज माय मैसेज। थैंक यू। বিশাল। নমস্কার, আমার নাম ডক্টর বিশাল মুখার্জি। আজকে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডেতে মূলত যে জিনিসটার উপর জোর দেওয়া সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং। আমাদের এখানে যেমন সার্ভিক্স ক্যান্সার আর ব্রেস্ট ক্যান্সার, এই দুটো রকমের ক্যান্সার আমাদের দেশে খুবই কমনলি পাওয়া যায়, এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার আমাদের নিজেদেরই হসপিটালেই আমরা গত বছর প্রায় 400টা কেস অপারেট করেছি, মানে অপারেবল কেস। তাছাড়া নিশ্চয়ই আরো নন অপারেবল মেটাস্ট্যাটিক কেসেস ছিল। তো সুবিধাটা আছে। আমার মনে হয় এখনো আমাদের দেশে সব স্তরেই স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফিটা সেইভাবে প্রচলিত নয়। তো 40 বছরের পর থেকে প্রত্যেকে মহিলা যাতে বছরে একবার করে এই স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফি টেস্টটা করান। এটা সামান্য একটা এক্সরের মতন পরীক্ষা, এবং এটাতে কোনো রেডিয়েশনের যে কোনো সাইড এফেক্ট বা এই রেডিয়েশনের জন্য পরে কোনো ক্ষতি হতে পারে তার কোনো ব্যাপার নেই। এটা নিয়ে যথেষ্ট স্টাডি হয়েছে। সেই জন্য স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফিটা আমি বলবো 40 বছরের পরে প্রত্যেকে মহিলা যাতে একবার বছরে এসে এই সুবিধাটা করিয়ে যান। এবং সেকেন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে সার্ভিক্স ক্যান্সার। সার্ভিক্স ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরেই আমাদের মহিলাদের মধ্যে সেকেন্ড মোস্ট কমন ক্যান্সার, এবং এটা একটা ইনফেকশনের জন্য প্রায় 95% হয়, ভাইরাল ইনফেকশন। এবং সেই ভাইরাল ইনফেকশনটার এগেনস্টে আমাদের ভ্যাকসিনেশন অ্যাভেলেবেল আছে। মানে অদ্ভুতভাবে যেমন আমরা পোলিও ভ্যাকসিন বা বিসিজি ভ্যাকসিন নিই এবং আমরা ভাবি আমাদের বাচ্চা এটা পেলো কিনা, এই ভ্যাকসিনটা পেলো কিনা, MMR পেলো কিনা, ঠিক যেন সার্ভিক্স ক্যান্সারের পক্ষে এই ভ্যাকসিনটা ওইভাবে এখনো প্রচলিত হয়। এটা ইউজুয়ালি 9 বছর থেকে 15 বছরের
ইয়াং এজের মহিলাদেরই দেওয়া হয়, পুরুষদেরও দেওয়ার কথা, কেন কি এই ভাইরাসটা কিছু পুরুষের ক্যান্সারও করে, বাট ফিমেলদের ক্ষেত্রে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাও অন্য ভ্যাকসিনদের মতন 2টো ডোজ 15 বছরের পরে হলে, কোনো সময় 3টে ডোজ। তো এই যে ডোজটা নিলে কিন্তু এই সার্ভিক্স ক্যান্সারটা কিন্তু একদমই প্রিভেন্টেবল, 95% প্রিভেন্টেবল। এবং আমার মনে হয় এই ভ্যাকসিনেশনটা যারাই প্যারেন্টসরা দেখছেন, তারা কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশনটার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসুন। এবং তার জন্য আমাদের এখানে কাউন্সিলর এরাও আছে যারা আপনাকে এই ডিজিজ সম্বন্ধে আরেকটু বলতে পারবে। তারপরেও সার্ভিক্স ক্যান্সার যদি 25-30 বছর বয়সের পর থেকেও প্যাপ স্ক্রিনিং এবং এইচপিভি ডিএনএ টেস্টিং, যেটা হাইব্রিড টেস্টিং, এটা দিয়ে আমরা সার্ভিক্স ক্যান্সারের স্ক্রিনিং করতে পারি। আর এই আমাদের ওপেন হিলের ক্যান্সারের জার্নির ক্ষেত্রে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে বলতে যে এই আজকে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডের দিনই একজন আমাদের অপারেশন করা পেশেন্ট আমাদের কাছে এসেছেন ওপিডিতে সেলাই কাটাতে। আর ঠিক তার আগের পেশেন্ট আর 5টা রোগীর মতন, যেমন শিলিগুড়ি থেকে কেউ ব্যাঙ্গালোরে যেত, কেউ মুম্বাইয়ে যেত, একজন বাইরে কোথাও থেকে অপারেশন করিয়ে আমাদের কাছে কেমো নিতে এসছে। তো একজন যখন অন্যজনের সাথে কথা বলছে, তখন অন্যজন বলছে যে আচ্ছা এই একই অপারেশন, তারপরে আচ্ছা তাহলে ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্ট কি পুরো ব্রেস্ট না বাদ দিয়েও ব্রেস্ট ক্যান্সার অপারেশন শিলিগুড়িতে হচ্ছে? তো অন্যজন বলছেন হ্যাঁ আমি করিয়েছি, উনি সেলাই কাটাতে এসছে। আর আরেকজন অপারেশন করিয়ে, যেহেতু এটা একটা লম্বা চিকিৎসা, আরেকজন কেমো নিতে এসছে। তো এই যে একটা ব্যাপার যে আজকে ধরুন যেটার জন্য সাউথ ইন্ডিয়া বা মুম্বাই বা ব্যাঙ্গালোর যেতে হতো, সেটা কিন্তু এখন আমাদের এখানে সেই আধুনিকতম ট্রিটমেন্টটা অ্যাভেলেবল। এবং আমি আমার অপারেশন এবং রেডিয়েশন পুরো অ্যাসপেক্ট থেকেই বলবো যে মোটামুটি একটা অ্যাডভান্স অপারেশন করতে যেই যন্ত্রপাতি আমাদের লাগে, একটা ক্যান্সার অপারেশন করতে যেই মেশিন পত্র, যাতে একটা অপারেশনে আমি কতটা করব সেটা জানতেও, যে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি বলুন, আইসিজি বলুন, আইএসসি অনেক সময় টেস্টের জন্য যেগুলো লাগে, সেগুলো কিন্তু সবই এখানে অ্যাভেলেবল। এবং এগুলো আমি ঠিক কথায় প্রকাশ করতে পারছি না যে এগুলো কতটা অ্যাডভান্স টেকনিক যেটা আমরা এখানে পাচ্ছি। আদারওয়াইজ কিন্তু এত অ্যাডভান্স সার্জারি লাস্ট 1-1.5 বছরে যেটা এখানে হয়েছে, সেটা কিন্তু করা পসিবল হতো না যদি না ইকুইপমেন্ট থাকতো। এই জন্য আমি এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রতিও কৃতজ্ঞ যে ওনারা এই সুবিধাপত্রগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন কাজ করার জন্য। একটা বিষয় থাকে যে ক্যান্সার হলেই একটা বাড়ির লোক বা বাড়ির আত্মীয়রা একটা টেনশনে থাকে কতটা কি হবে, সেই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমি যেটা নিজের চোখে দেখেছি যে একজন ব্রেস্ট ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয়েছে, তারা যখন দেখাতে এসছে, বাড়ির লোকজন আমাদেরকে চাইছে যে আমি যাতে পেশেন্টের সামনে ক্যান্সারটা না বলি, মানে অদ্ভুতভাবে ক্যান্সারটা যাতে ওনার সামনে না বলি। কিন্তু এখন এই ডিজিজটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে আর 5টা রোগের মতো, যেমন ধরুন কারো টিউবারকুলোসিস ধরা পড়ছে, তার জন্য যেমন অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ আছে, ওরকম ভাবে আমরা ফার্স্টেই বলি যে একদমই কিউরেবল একটা ক্যান্সার। আমাদের কাছে নিজে পেশেন্ট দেখাতে আসছেন যারা আমার নিজের বয়সের চেয়েও আগে ক্যান্সার ডিটেক্ট হয়েছিল, তারপর চিকিৎসা করিয়ে আজও তারা ফলো আপে আছে। তো এটা অ্যাবসলিউটলি কিউরেবল ক্যান্সার। এই যে প্রথমেই একটা কিউরেবল ক্যান্সারের কথাটা যখন পেশেন্টকে বলা হয়, সেটাই একটা আলাদাই ওনার মুখ চোখে, কেন কি হয়তো বাড়ির লোক ওকে বলেনি, কিন্তু পরিস্থিতি ওনাকে বুঝিয়েছে আমার বোধহয় খুব একটা এমন কিছু রোগ হয়েছে যেটাতে আমি ছাড়বো না। তখন যখন প্রথমেই আমরা বলি যে না এটা একদম কিউরেবল ক্যান্সার, তারপরে চিকিৎসার জন্য যখন উনি ভর্তি হন, তারপরে উনি হসপিটালেও অনেক স্টেজে পেশেন্টকে দেখেন। একজনকে দেখেন যার চিকিৎসা কমপ্লিট হয়েছে 1 বছর আগে, তার সে চেক আপে আসছে এবং সে ভালো আছে। কাউকে দেখছেন তার ট্রিটমেন্ট শেষ করছে, সে খুশি আমার ট্রিটমেন্ট এবার শেষ হচ্ছে। তো এই একজন পেশেন্ট আরেকজনকে যে মোটিভেশনটা দেয়, আর আমরা যে এই একজন ডাক্তারের কাছ থেকে শোনা যে এটা কিউরেবল, এইটাই মানসিকভাবে ওনাদেরকে অনেক বুস্ট করে। कॉमन कैंसर कौन सा है इस रीजन में ज्यादा आता है? देखिए हमारे यहाँ पे ये जो गैंजेटिक प्लेन है, ये भागलपुर के पास से गंगा गया है, और ये सब हिमालयन, जो हम लोग हिमालयन के नीचे ये सिलीगुड़ी शहर है, यहाँ पे हम लोग गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज्यादा देखते हैं। और अगर मैं टोबैको का बात बोलूँ, तंबाकू रिलेटेड, तंबाकू शरीर में लगभग 37 कैंसर करता है। तो तंबाकू का एक ऐसा चीज है, जैसा अभी बजट में भी इन्होंने तंबाकू में टैक्स वगैरह बढ़ाया है, तो ये यही बताना है जो तंबाकू का सेवन बंद करो। क्योंकि कुछ कैंसर हैं जो जेनेटिक, मतलब हम लोग इस जगह में इंडिया में निवास करते हैं तो ये इस रीजन में कॉमन है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा के थ्रू मिलते हैं।
पर इंडिया में सबसे कॉमन है तंबाकू रिलेटेड कैंसर, जो कि सिर्फ तंबाकू सेवन घटाने से और कम करने से ही ये बंद हो सकता है। तो कैंसर का जो मेजोरिटी लोड हमारे ये सिलीगुड़ी और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है वो लेकिन ओरल कैंसर ही आज तक है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसा मैंने बताया, और एक है गॉल ब्लैडर कैंसर, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस गैंजेटिक प्लेन, ये जो गंगा वाला रीजन के आसपास जो रहते हैं, यही अगर मैं इंडिया के दूसरे हिस्से की तुलना में हमारे यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर कैंसर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कोई अगर घाव मुंह में छाला या घाव हुआ हो जो आपका 3 हफ्ता या 3 हफ्ता से ज्यादा हो गया, आपने कोई लोकल डॉक्टर दिखाया पर वो कम नहीं हुआ है, हम लोग बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में नॉन हीलिंग अल्सर, एक अल्सर जो हील नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो 3 हफ्ते के बाद जरूर से जरूर एक मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जो अल्सर का नेचर होता है वही डिटरमिन करता है जो ये कैंसर कैसे होगा। और मुश्किल क्या होता है, जब इसको हम रख देते हैं तो बाद में अगर ये कैंसर बढ़ता है तो फिर ऑपरेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है। फिर जो हम लोग टीवी और मूवी हॉल में देखते हैं जो इतना बड़ा ये निकल गया, ये जिसको देखकर आदमी ट्रीटमेंट में नहीं आता है, और यही अगर अर्ली स्टेज में आए तो आपको ऑपरेशन के बाद पता ही नहीं चलेगा एक ओरल कैंसर का ऑपरेशन हो गया। पर वही है, आदमी लेट करते हैं, कैंसर की जो डर है वो अंदर रहता है, अच्छा ये टीवी में ऐसा देखा था तो शायद मेरा भी पूरा ये जबड़ा कट के निकल जाएगा, पर ऐसा हर समय नहीं होता है अगर हम छोटे से अर्ली स्टेज में आके डॉक्टर को दिखाएं। सर एक और लास्ट क्वेश्चन था, ये हॉस्पिटल किस तरह का यूनिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि मतलब कैंसर पेशेंट आते हैं उनके? देखिए सर्जरी में हमारे यहाँ पे में कैंसर सर्जरी में हमारे यहाँ पे जैसा मानिए ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर में एक सेंटिनल लिम्फ नोड मतलब एक्जिला में स्प्रेड करने का उसका एक अलग से मशीन होता है। उसमें हम लोग देखते हैं ऑन टेबल, मतलब पेशेंट बेहोश ही रहता है, हम लोग एक डाई देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे स्प्रेड किया है, तब हम उसका ऑपरेशन करते हैं, फिर हम उसको फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। तो ऑन टेबल 10-15 मिनट में पता चल जाता है जो कैंसर ब्रेस्ट में हमको मिल रहा है वो कैंसर शरीर में और भी कहीं पर फैला है या नहीं फैला है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले जो सबसे बड़ी सुविधाएं हैं वो है जो आपको दूसरा ऑपरेशन, मतलब ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन होकर निकल गया, फिर बायोप्सी में कैंसर आया, अब आप कैंसर के सेंटर में जाओ, ये चीज नहीं होता। आप वन सीटिंग में ही आपको पता चल जाता है, अच्छा बीमारी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक फैला है, इसका रिपोर्ट फ्रोजन सेक्शन पॉजिटिव है, एक बार में ही हम सर्जरी वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये जैसा ब्रेस्ट कैंसर में है वैसा ओवरी के कैंसर में भी होता है, लड़कियों में भी ये चीज देखा जाता है जो एक बड़ा सा ट्यूमर है, इस ट्यूमर को किसी ने यूटेरस और ओवरी ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर निकल गया, पर फिर कैंसर आया, अब कैंसर के हॉस्पिटल में जाओ, तो फिर ये ऑपरेशन आधा कहलाता है। पर ये फ्रोजन सेक्शन जो है उसमें हमको ऑपरेशन टेबल में ही पता चल जाता है जो ये कैंसर है या नहीं है। तो अगर कैंसर है तो हम लोग उसी एक ही सेटिंग में हम लोग कैंसर वाले ऑपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं। फिर ऑपरेशन ऐसा नहीं होता जो फिर 3 हफ्ता बाद 4 हफ्ता बाद आरेकटा ऑपरेशन करते हो और एक ऑपरेशन करना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो और अगर ऑपरेशन के टेक्निक में बताए तो हार्मोनिक लिगासी, और ये मैं कॉमन टर्म में कैसे समझाऊं, मतलब एडवांस से एडवांस जो जहाँ पे लीवर हो या फिर इंटेस्टिन में हो या पैनक्रियास में हो काटने के लिए, जहाँ पे ब्लीडिंग मिनिमाइज, क्योंकि बड़े ऑपरेशन में एक ऑपरेशन 5 घंटा चलता है, 6 घंटा चलता है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट सब है ये सब ब्लीडिंग को बहुत कमा देते हैं। इससे क्या होता है, रिकवरी फास्ट होता है। जो मानिए आपको कभी कभी तो हमको लास्ट शायद 4-5 महीने में हम लोग को ऑन टेबल ऑपरेशन में ब्लड लगा ही नहीं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टेबल में ऑपरेशन करने पर वो ब्लीडिंग्स को एकदम रिड्यूस कर देते हैं, और हम जो कठिन से कठिन जगह है वहां तक हम इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे पहुंच सकते हैं। और लैप्रोस्कोपी, आदमी ऐसा भी सोचता है जो शायद लैप्रोस्कोपी से कैंसर का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अभी जो कोलोन कैंसर्स हैं, जो स्टोमक कैंसर्स हैं, ये सब लैप्रोस्कोपी में देखा गया है। जो ओपन के कुल रिजल्ट है, मतलब जैसा ओपन का रिजल्ट है वैसा लैप्रोस्कोपी का है। हमने खुद एक यहाँ पे कोलोन कैंसर में लैप्रोस्कोपी एक पूरा कैंसर किया है। जिस दिन बड़ा ऑपरेशन था वो 3 दिन बाद पेशेंट छुट्टी हो गया, 7 दिन बाद, मतलब जैसा नॉर्मल एक गॉल ब्लैडर स्टोन में होता है उसी तरह उनका रिकवरी एकदम 7 दिन में हो गया। सो ये सब फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है जो एट पार, मतलब जैसा मानिए साउथ इंडिया यहाँ पे जिस तरह जिसके खोज में हम लोग जाते हैं वो सब सर्जिकली सब यहाँ पे अवेलेबल है। रेडिएशन और बाकी न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर राजेश भी बताएंगे। डॉक्टर राजेश के बारे में
मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, मॉलिक्यूलर मेडिसिन फिजिशियन, अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो सर लोगों ने तो बता दिया अर्ली, मतलब आज वर्ल्ड कैंसर डे है और अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह। बट आफ्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किसी को पता लगा जो कैंसर है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए पेट सीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो छोटा से छोटा भी कैंसर पता लगा सकता है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। इंजेक्ट करने के हाफ एन आवर और 2 45 मिनट्स में हम लोग स्कैन करते हैं। एक सिटी स्कैन जैसा मशीन है, उसमें सिटी भी है और पेट भी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन, सिटी मतलब एनाटॉमिकल इमेजिंग और पेट में फिजियोलॉजिकल इमेजिंग, दोनों एक ही साथ कॉम्बो में करके हम लोग पता करते हैं जो कैंसर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ फैला है और बॉडी के कौन सा पार्ट में फैला है। ये एक ही कॉम्बो में पता करके हम लोग बता सकते हैं। जो यही है पेट सिटी का रोल न्यूक्लियर मेडिसिन में। तो अभी हम लोग का एक नया रेडिएशन मशीन आ रहा है जो कि ट्रू बीम है, ट्रू बीम विद हाइपरसाइट। तो उसके बारे में डॉक्टर अनुकूल, डॉक्टर शिवा, डॉक्टर श्रेया, डॉक्टर एना, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर शुभो, तो हम ये 6 लोग आप लोगों को बताएंगे। तो हम लोग क्लियर आउट करते हैं। सबसे पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन। जी नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रेया रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो मैं उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस और हमारा जो रेडिएशन मशीन आ रहा है नया, उसका जो न्यू क्या डिफरेंट है और अभी के रेडिएशन मशीन से क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के रेडिएशन मशीन में हम हर रोज पेशेंट को एक इमेज लेते हैं, उसको बोलते हैं हम CT-CT। तो उसको हम कंपेयर करते हैं जिस सिटी में हमने रेडिएशन प्लानिंग किया था, वो हम कंपेयर करते हैं। वो रेगुलर टाइमिंग लेता है, कुछ 1 मिनट वो लेता है स्कैन के लिए। उसके बाद कंपैरिजन होता है, उसके लिए 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स लगता है। उसके बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है जो लगभग लेता है 3 से 4 मिनट। तो ये टोटल प्रोसेस हो गया 7-8 मिनट का, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया। अगर हम नया मशीन की बात करें तो वो CT-CT लेने का जो प्रोसीजर है वो बहुत फास्टर है और जो इमेज क्वालिटी हम बोलते हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गया है वहाँ पे। तो हम उससे बहुत इजीली कंपेयर कर पाएंगे फास्टर एंड बेटर क्वालिटी। तो उसे हम रेडिएशन प्लानिंग, जो हम रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट को, वो ठीक तरह से जा रहा है या नहीं, हर रोज मॉनिटर कर पाएंगे। और जो 7-8 मिनट लग रहा था, अभी लगेगा सिर्फ 5 मिनट। हर पेशेंट को रेडिएशन इमेज भी हो जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देख पाएंगे। और हर रोज रेडिएशन लगता है, सिटिंग्स लगता है 10 से 20 सिटिंग्स, अप टू 30 सेटिंग्स टू 35 सेटिंग्स भी लगता है। तो वो सारे सेटिंग्स में एक ट्यूमर का साइज एक ही नहीं रहता है, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा घटता है और उसका बायोलॉजी और वो शेप चेंज होता रहता है। तो हम जो रेडिएशन प्लानिंग पहले दिन बनाते हैं वो सेम 20वें दिन पे नहीं रहता है। तो ये नए मशीन से हम उसको वो रेडिएशन प्लानिंग पेशेंट के ट्यूमर के हिसाब से हर रोज जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से मॉडिफाई करके एवरी डे जो है उसको मॉडिफाई करके हम दे सकते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो नॉर्मल ऑर्गन्स है, नॉर्मल टिश्यूज है उसके सराउंडिंग, उसको कम से कम रेडिएशन पड़े और कम से कम साइड इफेक्ट हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस हमारे नए मशीन में। और बाकी जो डिफरेंसेस है आपको दूसरे डॉक्टर बताएंगे। मैम ने बोला, जैसे आपको सिंपल टर्म में बोलते हैं, टाइम रिड्यूस करना है, पेशेंट का साइड इफेक्ट कम करना है। और ट्यूमर जो आपको देखिए बड़ा होता है, जब रेडिएशन देंगे वो छोटा रहता है, छोटा होने लगता है। सो साइज कम करने के लिए हमें इमेज और भी बेहतर हो जाएगा। सो इसीलिए साइड इफेक्ट कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, पेशेंट को ज़्यादा हम ले सकते हैं। और इसका पुराने से भी और भी बेहतर वाला ट्रीटमेंट है और कम टाइम में हम बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और साइड इफेक्ट कम होने के कारण पेशेंट का कंप्लेंट भी कम हो जाएगा। ये हम उद्देश्य। ठीक है।
मैं दो बात कहना चाहता हूँ। जो हमारा नया मशीन आ रहा है इसमें DIVH है। DIVH क्या होता है? ये ब्रेथ होल्ड, मतलब जो हर इंसान जब रेडिएशन के लिए हम प्लान किए हैं वो तो स्टैग्नेंट नहीं है, सांस लेता है। तो जो चेस्ट वॉल जो हम बोलते हैं ऊपर नीचे होते रहता है, जो लंग्स है हमारा वो सांस फूलते रहता है, कम होते रहता है। जो हमारा ट्यूमर है, सपोज लंग के अंदर एक ट्यूमर है, हमने एक रेडिएशन प्लान किया है, जब हम डिलीवरी करेंगे वो उसी जगह पे नहीं रहता है, अपने सांस के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। जो ये नया मशीन है, तो इस मशीन में वो ट्यूमर भी ट्रैक होते रहेगा कि उसका मूवमेंट क्या है, और उस मूवमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट डिलीवर होगा। तो हम ऐसे एक फिक्स करते थे कि वॉल्यूम, कि जब पेशेंट 600 ml सांस अंदर ले या 500 ml सांस अंदर ले, हम पेशेंट को पहले ट्रेन करते हैं कि आप इतना सांस लेके रोकिए, फिर आप सांस छोड़िए। तो अब जब उन्होंने सांस लेके रोका है उस पर हम प्लान करते हैं। जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा, वो सांस लेके जब रोगा, मशीन अपने आप ऑन होता है, ट्रीटमेंट डिलीवरी होगा। जब पेशेंट ने सांस छोड़ दिया, मशीन अपने आप बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी जगह है वहाँ पे कभी रेडिएशन जाएगा नहीं, और जो कभी जो ट्यूमर है, जो कैंसर जो हम ट्यूमर बोलते हैं वो कभी मिस होगा नहीं। तो जो एक्यूरेसी बोलते हैं वो इसे वेरी सुपीरियर एक्यूरेसी। तो शब्दों में बताना एक थोड़ा मुश्किल चीज़ है। तो इन रियलिटी जो टेक्नोलॉजी हैपनिंग एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज फार। तो रेडिएशन सेंटर्स बहुत है, रेडिएशन मशीन भी बहुत है, लेकिन जो समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, दैट वी आर एबल टू गेट हियर नाउ विद दिस न्यू मशीन। तो दिस आई विल से कि एट पार विद द टाइम 2026, उस हिसाब से जो होना चाहिए वो हो रहा है। दिस आर द एडवांस टेक्नोलॉजी। और इस मशीन पे हम जो ब्रेन रेडियो सर्जरी बोलते हैं, रेडियो सर्जरी क्या है? तभी हम ब्रेन ट्यूमर होता है तो दो तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। एक है कि सर्जरी करो, सर्जरी का मतलब अपना अपना जो स्कल बोन है उसको काटो, निकालो, फिर अपना ट्यूमर निकालो, फिर जोड़ो, ठीक है। तो और दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे रेडिएशन से ही उसको पिघला दो। तो नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव में मतलब ये क्या है कि हम कुछ काट नहीं रहे हैं, हम ना एक नाइफ डाल रहे हैं, तो बिना काटे और ना हम पेनिट्रेट करें ब्रेन के अंदर, हम ट्यूमर को गायब करते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी एडवांस इन इटसेल्फ कि विदाउट एनी पुटिंग ए ब्लेड, नॉन इन्वेसिवली वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट एज सर्जरी। ओके, एंड स्पेशली फॉर यंगर पेशेंट और जो पेशेंट जिनका लाइफ, हाँ हालांकि उनको कैंसर का बीमारी आ गया है, पर जो ओवरऑल सिनेरियो देखिए कि उनकी अभी उम्र बहुत साल है, अभी वो आराम से 10 साल जी सकते हैं, लेकिन उनका लाइफ ऐसा है कि कैंसर में क्यूरेबल एक डिसीज है जो पेशेंट क्योर हो जाता है। एक पेशेंट है कि जो बहुत स्टेज 4 आके आते हैं हमारे पास, जो वेरी लिमिटेड टाइम, जो आखिरी में कुछ बचा नहीं तो फाइनली ठीक है, तो हॉस्पिटल, दैट कंडीशन। और एक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्यूर नहीं होते हैं, पर उनका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा खासा है, सो दे डिजर्व कि एक अच्छा लाइफ लीड करे। और उन पेशेंट को सर्जरी, बड़ा सर्जरी करना और एक बर्डन देना इज नॉट गुड। तो उस समय इस मशीन, इस एडवांस टेक्नोलॉजी रेडियो रेडियो सर्जरी जो हम बिना ब्लेड लगाए, मतलब नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कर सकते हैं, और उसके लिए जो ये मशीन आ रहा है इज वन ऑफ द बेस्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड। आगे हमारे डॉक्टर रत्ना किशोर और आना। I'm Dr. Anna. I'm here as a radiation oncologist in Upper Hospital. I'd like to say, can I say English? As a World Cancer Day, I'd like to give an awareness because it is better to diagnose the cancer as early as possible. Because as the stage advances, the treatment becomes more difficult and more costly. Even when the cancer is in the early stage, when it is less than tumor size is less than means it is in a small size, and the treatment will be lesser. Like the cost will be lesser. We don't want to treat and then maybe the surgery may only may be required. So all the treatments are available here, even though, but early diagnosis is better than the rest. Ma'am, it seems that regarding the cancer, there are so many myths. So, any message to the people for awareness?
there are many myths in our country especially, and many patients will go for alternate treatment like homeopathy, Ayurveda, maybe some other alternate treatment also. They believe that this cancer will cure by that treatment, but I'm 100% sure that they won't cure like that, because we know the evidences, we are studying that evidences and we are seeing the result as well as that. So what I'm telling you, don't go with the myth. Better to seek a medical advice and then treat the cancer. Breaking the bar. Okay, namaste. I'm Dr. Ratna Kishore, working as radiation oncologist in Hope and Heal Cancer Hospital. आज February 4th वर्ल्ड कैंसर डे है। इस साल का वर्ल्ड कैंसर डे का मोटो है लाइक यूनाइट बाय यूनिक। इसका मतलब है हर एक पेशेंट, हर एक डायग्नोस अलग अलग होता है, हर एक डायग्नोस का हर एक बीमारी में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इवन हर एक पेशेंट अलग अलग होता है। इसका हिसाब से हम ट्रीटमेंट चलना है, ट्रीटमेंट देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पेशेंट सारा लोग लाइक वो सोचते हैं कि अगर कैंसर डायग्नोस हो जाएगा तो मर जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे वो एक्चुअली वो 50 साल पुराना वाला बात है। अभी तो वैसा नहीं, कैंसर इज ऑलमोस्ट नाउ इट्स फुल्ली क्यूरेबल व्हेन इट कम्स टू अर्ली स्टेजेस। एंड अभी लेट स्टेज में भी हम कैंसर पेशेंट को जो ट्रीट कर रहे हैं, जिनको लाइक लाइफ स्पैन कम होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग, दे वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। लाइक जो लाइफ तो जीत सकते हैं उसका हम लाइक अच्छे तरीके से जीना है। इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट सर्वाइविंग इन द बेड और दे जस्ट लाइंग डाउन, नॉट लाइक दैट, ठीक है। अभी हमारे पास जो ट्रीटमेंट का लाइक एडवांसमेंट्स है, सो वी आर एबल टू गिव द पेशेंट ए बेटर लाइफ, नॉट जस्ट सर्वाइवल, ओके। और अभी वो मिशन के बारे में सोचने से वो नया मिशन जो आने वाली है, वो जो मिशन ऑलरेडी चल रहा है इससे मोर प्रिसाइज है। सो हम साइड इफेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का टाइम भी कम हो जाता है, और ज़्यादा पेशेंट्स को हम एक ही दिन ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अवेयरनेस के बारे में बोलना चाहे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ पीपल को, डोंट नेग्लेक्ट एनीथिंग। लाइक अगर छोटा गाँव होगा और छोटा गांठ लग रहा है तो और जो भी 2 हफ्ते के ऊपर वैसे ही चल रहा है और कुछ भी कम नहीं हो रहा है, वैसे है तो जस्ट टू गेट ए मेडिकल अटेंशन और टू गो टू हॉस्पिटल, नॉट जस्ट सिट देयर एंड वेट फॉर इट टू रिजॉल्व बाय इटसेल्फ। दैट इज द थिंग पीपल थिंक वो खुद ही कम हो जाएगा, हम वैसे सोच रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, वैसे नहीं। हॉस्पिटल को जाना है, ट्रीटमेंट को सीख करना है, ठीक है। নমস্কার, আমি ডক্টর শুভদেব সরকার, আমি একজন রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট। তো আজকে 4th ফেব্রুয়ারি, আজকে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস। এই বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে আমি এটাই বলতে চাই যে ক্যান্সার নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, অনেক স্টিগমা আছে সমাজে। এই সমাজের এই স্টিগমাগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ক্যান্সার পেশেন্টকে মানে একটা জায়গাতে একঘরে করে দেওয়ার একটা প্রচলিত ব্যবস্থা আছে যে ক্যান্সার হলে হয়তো এটা অন্য লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে, কিন্তু এই ধরনের কোনো ব্যাপার নেই। ক্যান্সার হলে তার নিয়মিত চিকিৎসা করলে এবং এটা যদি প্রাথমিক স্টেজে যদি এটাকে ডিটেকশন করা যায়, এটাকে যদি নিয়মিতভাবে চিকিৎসা করা যায়, তাহলে এটাকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এবং রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট হিসাবে বলতে চাই যে আমাদের কাছে এখন যে নতুন টেকনোলজি আসতে চলেছে সেটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা টেকনোলজি, বিশ্বমানের একটা টেকনোলজি। পৃথিবীর সমস্ত ভালো ভালো রেডিয়েশন অনকোলজি সেন্টারে এই মেশিনই ব্যবহার করা হয় এখন। এটাতে কি হয়, যেমন আপনারা আগেও শুনলেন, অন্য ডাক্তারবাবুরা বললেন যে এতদিন পর্যন্ত যে আমরা ইমেজ গাইডেন্সটা ইউজ করতাম, তার মানে এই মেশিনের মধ্যে মেশিনের একটা নিজস্ব চোখ আছে, সেই চোখটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা সিটি স্ক্যানার। সেই সিটি স্ক্যানারটা দিয়ে এই মেশিনটা কিন্তু শরীরের মধ্যে কোথায় ক্যান্সারটা লুকিয়ে আছে সেটাকে দেখতে পায়। এটা অলমোস্ট একটা চোখের মতোই, মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সারটা আছে ঠিক সেই জায়গাটাতেই রেডিয়েশনটা পড়বে এবং ক্যান্সারটা যখন বডির সাথে মুভ করবে
এই রেডিয়েশনের যে বিমটা সেটা ওই বডির সাথে মুভ করতে সক্ষম হবে। এইভাবেই রেডিয়েশনটাকে একদম অ্যাকিউরেটলি এবং প্রিসাইজলি যেখানে ক্যান্সারটা হয়েছে সেখানেই দেওয়া সম্ভব। এতে করে কি হচ্ছে, পেশেন্টের যেমন ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টটা ভালো হচ্ছে, সেরকম সাইড এফেক্টগুলো অনেক কমে যাচ্ছে। এবং দ্বিতীয়ত এতে যে এই সিবিসিটিটা নেওয়া হবে, মানে ইমেজ গাইডেন্সটা যেটা নেওয়া হবে, এতদিন পর্যন্ত যে মেশিনগুলো ছিল আমাদের কাছে সেটাতে একটা সিবিসিটি নিতে প্রায় 1 মিনিট সময় লাগতো, 60 সেকেন্ড। সেক্ষেত্রে এই মেশিনে সেটা নেমে আসবে মাত্র 6 সেকেন্ডে, মানে 10 গুণ কমে যাচ্ছে। তার ফলে কি হবে, পেশেন্টকে এই যে ফ্ল্যাট কাউচে শুয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ ধরে, সেই জিনিসটা আরো কমে যাবে। ধরুন একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করতে এখন 10 মিনিট সময় লাগতো, সেটা এই মেশিনে কমে দাঁড়াবে 5 মিনিট। ফলে পেশেন্টের যে শুয়ে থাকার সময়টা সেটা অনেক কমে যাবে। ফলে পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি কমফোর্টেবল হবে। পেশেন্টের আরো অনেক বেশি পেশেন্ট আমরা একই দিনে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। ফলে পুরো ব্যাপারটাই অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে যাবে আমাদের কাছে। তাই এই বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে আমি এটাই বলতে চাই যে আপনারা সমস্ত ধরনের এইসব ভ্রান্ত ধারণা এবং যে অল্টারনেটিভ মেডিসিন গুলো কমনলি প্র্যাকটিস করা হয়, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, এসবের কবল থেকে দূরে এসে আপনারা এই আমাদের এই যে বিশ্বমানের যে এখানে যে চিকিৎসা কেন্দ্রটা খোলা হয়েছে নর্থ বেঙ্গলে প্রথমবারের জন্য, এখানে আসুন এবং এই যে টেকনোলজি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, এটার সুবিধাটা আপনারা নিন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। एक मिनट का बोलो। एक और तरह का रेडिएशन मैं टेक्निक बोलना चाहूंगी। ये अभी तक जो हमने एडवांस मशीन और नया मशीन हमने बात किया, वो सब रेडिएशन बाहर से देता है। एक और टेक्निक है जहाँ में हम रेडिएशन शरीर के अंदर से दे सकते हैं। ट्यूमर के अंदर जाके हम रेडिएशन दे सकते हैं और वो बहुत ही प्रिसाइज रेडिएशन हो सकता है। तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकीथेरेपी, जहाँ पे हम रेडिएशन का जो सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स, हम पूरा ट्यूमर के पास नहीं तो ट्यूमर के अंदर रख के सिर्फ ट्यूमर का जगह हम ट्रीट कर रहे हैं। अभी करंट सिनेरियो में वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, मतलब सर्विक्स कैंसर जो हम बोलते हैं, विच इज सेकेंड मोस्ट कॉमन इन द फीमेल, उसमें ट्रीट होता है। तो आधा भाग हम बाहर से रेडिएशन देते हैं और आधा डोज हम ब्रेकीथेरेपी के माध्यम से देते हैं। ब्रेकीथेरेपी के माध्यम हम दो टाइप होता है ब्रेकीथेरेपी में, एक होता है इंट्राकैविटेटरी और एक होता है इंटरस्टिशियल, जो दोनों बहुत ही एडवांस्ड है और दोनों ट्रीटमेंट हम इस हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत प्रिसीजन और बहुत ही टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड है वो सब, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे हम कर सकते हैं, विच इज वेरी मच हायर प्रिसीजन और वेरी लेस साइड इफेक्ट। कैंसर पेशेंट का अभी सर्वाइवल रेट कितना परसेंट है इन एंड अराउंड? सर्वाइवल मैं बोल सकूंगी, अगर आप अर्ली स्टेजेस में आएंगे जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड, सर्वाइवल होगा आराम से 10 साल, विदाउट एनी हेजिटेशन 10 साल तक हो सकता है। बट इन द लेटर स्टेजेस सर्वाइवल थोड़ा घट जाता है, बट विद द मोर एक्यूरेट ट्रीटमेंट एंड मोर एडवांस्ड ट्रीटमेंट हम वो भी सर्वाइवल अभी इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली इन द ऑल द पेशेंट्स अब जो हम ट्रीट कर रहे हैं, उनका हम देख रहे हैं इवन इन द लेटर स्टेजेस जो हम आ रहे हैं एंड करेक्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं टाइम टू टाइम, उनका सर्वाइवल अभी बहुत बढ़ चुका है। दे आर चेंजिंग द बुक, जो हम पढ़ रहे थे, जो हम सर्वाइवल एंड ऑल, इट इज ऑल चेंजिंग द बुक्स विद सच एडवांस्ड। तो इसीलिए हम इतना इनकरेज कर रहे हैं सबको कि आगे आए, ट्रीटमेंट ले और अपना जिंदगी और बेहतर बनाए।